میدان تیار، ٹیمیں متحرک، ہدف صرف ایک پولیو فری سندھ۔ پولیو کے خلاف اعلان جنگ، وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑا ایکشن، منتخب نمائندے، وزیر، مشیر سب میدان میں اتریں گے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ہلکا نگرانی کا پلان تیار، ارکان اسمبلی کو فیلڈ کمانڈر کا رول مل گیا ہے۔ اب وزراء صرف بیانات نہیں، سڑکوں پر ویکسینیشن سائٹس کا دورہ بھی کریں گے۔ فیلڈ رپورٹ براہ راست وزیر اعلیٰ کو، کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، ہر بچے تک پولیو ویکسین پہنچانا حکومت سندھ کا مشن نمبر 1۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے آزاد مہوڑیوں سے۔ جی آزاد بتائیے۔ جی بالکل، حکومت سندھ کا ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ حکومت سندھ نے پولیو سے نمٹنے کے لیے یا اس کو جڑ سے خاتمے کے لیے باضابطہ طور پر کمر کس لی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، وزراء، مشیروں، معاونین خاص کو پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پولیو مہم میں حصہ لینے کی ہدایت کر دی ہے، جس کا وزیر اعلیٰ سیکریٹری نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا اہم فیصلہ، سندھ سے منتخب ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو پولیو مہم میں فعال حصہ لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ صوبائی وزراء، مشیروں اور معاونین خاص کو بھی میدان میں رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے منتخب نمائندگان کو حلقوں میں نگرانی کی ذمہ داری تفویض کر دی گئی ہے۔ میدان تیار، ٹیمیں متحرک ہیں، ہدف صرف ایک، پولیو فری سندھ۔ پولیو کے خلاف اعلان جنگ، وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑا ایکشن، منتخب نمائندے، وزیر، مشیر سب میدان میں اتریں گے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ہلکا نگرانی کا پلان تیار، ارکان اسمبلی کو فیلڈ کمانڈر کا رول مل گیا۔ اب وزراء صرف بیانات نہیں، سڑکوں پر ویکسینیشن سائٹس کا دورہ بھی کریں گے۔ آزاد مہوڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد بتائیے۔ جی بالکل، حکومت سندھ نے پولیو مہم کو کامیاب بنانے یا پولیو کو جڑ سے خاتمے کے لیے باضابطہ طور پر کمر کس لی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اہم بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، صوبائی وزراء، مشیروں اور معاونین خاص کو پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پولیو مہم میں حصہ لینے کی ہدایت کر دی ہے، جس کا وزیر اعلیٰ سیکریٹری نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ یہ نوٹیفیکیشن وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے سیکشن افسر سارنگ علی شیخ کے دستخط سے جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ سے منتخب ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو پولیو مہم میں فعال حصہ لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ صوبائی وزراء، مشیروں اور معاونین کو بھی میدان عمل میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیو کے خاتمے کے لیے منتخب نمائندگان کو حلقوں میں نگرانی کی ذمہ داری بھی تفویض کر دی گئی ہے۔ تمام وزراء اور نمائندے ویکسینیشن سائٹ کا دورہ کریں گے اور رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی ہے کہ تمام یو سی، وارڈ، تحصیل، ضلعی سطح پر یہ تمام جو ارکان ہیں یا حکومتی نمائندگان ہیں یا وزراء، مشیر، معاونین خاص ہیں، ایم پیز ہیں، یہ اب جو فیلڈ میں رہیں گے اور پولیو مہم سے شروع ہوگی۔ پولیو مہم کی جو عوامی نمائندگان ہیں اس کی نگرانی کریں گے اور پولیو مہم کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکایت برداشت نہیں کی جائے گی اور پولیو مہم کو مکمل طور پر کامیاب بنانے کے حوالے سے ان ارکان جو حکومتی نمائندگان ہیں ان کو بھی ہدایت کر دی ہے، جس کا باضابطہ طور پر آفیشیل یعنی سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی آزاد مہوڑی، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ کراچی اور اندرون سندھ میں پولیو مہم کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کر لیے گئے۔ آئی جی سندھ کے احکامات پر کراچی اور لاڑکانہ پولیس کو 3500 اہلکاروں پر مشتمل اضافی نفری فراہم کر دی گئی۔ سینٹرل پولیس آفس سے جاری حکم نامے کی کاپی سٹی 21 نے حاصل کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے معراج اختر سے۔ جی معراج بتائیے۔ جی بالکل، سندھ پولیس اور خاص طور پر کراچی پولیس جو ہے بگڑتے ہوئے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو ہے اپنے سیکیورٹی اقدامات کرتی رہتی ہے۔ اس وقت جو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو آئی جی سندھ کی جانب سے احکامات صادر کیے گئے ہیں کہ کراچی رینج کی پولیس کو بھی اضافی نفری دی جائے اور ساتھ ساتھ لاڑکانہ رینج پولیس کو بھی جو ہے وہ اضافی نفری دی جائے۔ تو اس کے لیے بالکل سینٹرل پولیس آفس سے ایک باقاعدہ لیٹر جاری ہوا ہے، جس لیٹر کی کاپی سٹی 21 نے حاصل کی ہے۔ اس لیٹر میں جو ہے بتایا گیا اور یہ لیٹر لکھا گیا ہے ڈی آئی جی ٹریننگ سندھ کو کہ وہ جو ہے اضافی نفری فراہم کریں جو کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے انڈر میں بھی کام کرے گی اور ڈی آئی جی لاڑکانہ زون کے انڈر میں بھی کام کرے گی۔ تو جو ابھی 13 تاریخ سے جو ہے شروع ہونے والی ہے پولیو مہم، جو کہ 13 تاریخ سے لے کے 19 اکتوبر تک جو ہے وہ جاری رہے گی، اس کی سیکیورٹی کے لیے 3500 اہلکار جو ہیں وہ نامینیٹ کیے
गए हैं IG सिंध के अहकामात पर, और ये तमाम के तमाम अहलकार जो हैं वो सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर, रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर और शहीद बेनज़ीराबाद ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह से जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और तमाम के तमाम अहलकारों की लिस्टें जो हैं वो दे दी गई हैं। और साथ में DIG ट्रेनिंग सिंध को ये भी कहा गया है कि एक इसके लिए स्पोक्समैन वो मुकर्रर करें बाकायदा, और तमाम लोगों की लिस्टिंग करके उनके फूड की सप्लाई का मामला हो या उनके रहने का मामला हो तो तमाम तर इक़दाम जो है उनके लिए किए जाएँ, क्योंकि वो ट्रेनी अहलकार हैं जो अभी जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में, और अभी इनको सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। ये भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि अमली तरबियत भी उसके साथ साथ चलती रहती है। तो इस वक्त कराची पुलिस को और ख़ासतौर पर लाड़काना पुलिस को जो है वो 3500 इजाफी एहलकार दे दिए गए हैं, जो कि इस वक्त जो शुरू होने वाली पोलियो मुहिम है इसके दौरान पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जामिया कराची में पॉइंट बस से हादसे में तलबा के जाँ बहक होने का मामला, तलबा और तालबात की जानिब से एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। एहतजाज के दौरान 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम भी हुआ। एक तंजीम की जानिब से एहतजाज ख़त्म किया गया तो दूसरी ने इनकार कर दिया। दोनों तलबा तंजीमें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। मज़ीद सूरत हाल के हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल जामिया कराची में सुबह सवेरे जो है जामिया की पॉइंट से जो है सोशल वर्क डिपार्टमेंट की तलबा जाबाक हुई थी, जिसके बाद तलबा व तलबात ने जो है एडमिन ब्लॉक के सामने शदीद एहतजाज किया, और एहतजाज करते हुए वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास आकर उन्होंने सड़क को ब्लॉक कर दिया था। और उनका ये कहना था कि किसी भी पॉइंट को इस सड़क से जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट की खस्ता हालत है और पॉइंट में भेड़ बकरियों की तरह स्टूडेंट्स को, तलबा व तलबात को भर दिया जाता है, और जो पॉइंट्स हैं उनमें मज़ीद जो है वो इजाफ़ा नहीं किया जाता, जिस पर उन्होंने शदीद एहतजाज किया। जिसके बाद एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए एक तंजीम की जानिब से कोशिश की गई, तो दूसरी तलबा जो तंजीम थी उन्होंने एहतजाज ख़त्म करने से मना किया, तो दोनों तलबा तंजीमों के दरमियान जो है लड़ाई और झगड़ा हुआ। दोनों तलबा तंजीम के जो कारकुनान थे वो गत्तम गुत्ता हो गए। तो फिर पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची, और पुलिस ने जो है पहुँच कर जो है दोनों जो तलबा तंजीमें हैं उनको अलग किया और सूरत हाल को कंट्रोल किया। सूरत हाल को काबू करने के बाद जो तलबा व तलबात यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे वो यहाँ से एहतजाज ख़त्म करके अपने अपने घर रवाना हो गए। वाइस चांसलर की जानिब से जो है एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है हादसे की जो तहकीकाती कमेटी है वो मुकम्मल तौर पर इस हादसे की जो है वो जाँच पड़ताल करके एक रिपोर्ट जो है वाइस चांसलर को जो है वो पेश करेगी। जबकि वाइस चांसलर का ये कहना था कि हादसे का हमें बहुत अफसोस है, जिस ड्राइवर से यह हादसा हुआ है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जबकि वाक़े का मुकदमा जो है वो पुलिस की जानिब से अभी दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि जब जो बच्ची इस वाक़े में जाँ बहक हुई है उसके जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। उन्होंने जो है बच्ची की जो लाश है वो वसूल कर ली है, और उनका ये कहना है कि अब हम जो है किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन तलबा और तलबात की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया गया है। उनका ये कहना है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जामिया कराची के जितने भी पॉइंट्स हैं वो कई साल पुराने हैं, और उनकी जो फ़िटनेस है और वो भी जो है ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है भेड़ बकरियों की तरह जो है यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स उन पॉइंट्स में भर दिए जाते हैं। तो आज एक बच्ची जामा को ये तो कल कोई बड़ा भी हादसा हो सकता है, तो फौरी तौर पर जो है इस मसले को देखा जाए और जो जामिया कराची की पॉइंट्स हैं उसमें जो है वो इजाफ़ा किया जाए। जी। सिंध हुकूमत की ई चालान पॉलिसी ट्रांसपोर्टर्स ने एतराज़ उठा दिया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा खान का कहना है बड़ी गाड़ियों पर 50,000 रुपए तक के चालान नाकाबिल कबूल हैं। काविश में से तफसीलात जान लेंगे इस हवाले से। जी काविश, बताइए। जी बिल्कुल, देखें, सिंध हुकूमत ट्रैफिक कवानीन में बेहतरी लाने के लिए ई चालान की पॉलिसी पर गामज़न है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि इस माह के इख्तिताम तक जो ई चालान की हिकमत अमली बनाई गई है उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा। तमाम इस हवाले से हम देख रहे हैं कि शहरियों के और जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। इस हवाले से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिसमें ऑयल टैंकर्स शामिल हैं। मेरे साथ खानज़ादा खान महसूद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखो, मुल्क के अंदर कोई भी मुल्क हो उसके अंदर कानून ना हो तो उसको मुल्क कहलाया नहीं जाता, लेकिन कानून जो है मुल्क में ट्रांसपोर्टर बाकी जो आवाम है उससे भी राय लिया जाना ज़रूरी है। अभी शहर कराची या सिंध के अंदर 3-4 सूबे पाकिस्तान या 5 सूबे हैं, अभी एक के अंदर कानून फॉलो हो और 3 के अंदर ना हो तो इसका क्या इक़दाम होगा।
नंबर 2 ये मैं कहता हूँ कि 50,000 चालान अभी खुदा की कसम मैं कहा तो मुझे मुनासिब नहीं है कि अगर 3 करोड़ की गाड़ी हो वो 1 से 1,20,000 और 30 लाख रुपए से ज़्यादा उसका कमाई नहीं है पूरे महीने का, तो अगर 50,000 चालान होगा तो वो क्या करेगा। तीसरा सवाल ये है कि यहाँ पे शहर के अंदर आप खुद देख लो, तकरीबन 100% में 35% लोगों के नाम पे रजिस्टर खुद है, बाकी जो 65% है वो बैंक के नाम पे, शोरूम के नाम पे, किस्तों के नाम पे, तो ये क्या करेंगे। तो मैं ये खुद दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो चालान है 50,000 इसमें बिल्कुल बहुत कमी की जाए ताकि आवाम के बर्दाश्त में हो। अगर ये चीज़ ना हो तो आवाम गाड़ी कैसे चलाएगी। और दूसरी बात ये कि इस चीज़ पर नज़रसानी की जाए। मैं खुद इस चीज़ की हिमायत करता हूँ कि कैमरे हो, हमारे शहर के अंदर साफ़ सुथरा माहौल हो, कोई गलती ना करे, कोई किसी को कुचल ना डाले, लेकिन इसके लिए पॉलिसी में थोड़ी नरमी लाना पड़ेगी। ऐसा ऐसा फिर इंशाल्लाह साल 5-6 महीने के अंदर फिर ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ की मुनासिब नहीं है। ठीक है, इस हवाले से देखेंगे जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन है उनका कहना है कि हुकूमत ने जो ई चालान की पॉलिसी लाई है उसको खुशाइन करार देते हैं, तमाम जो चालान की फ़ीस मुकर्रर की गई है वो इस पर नरमी का मुतालबा किया जा रहा है। जी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नवल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद हिदायत वारिस और मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कयानी ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि उर्दू ज़बान हमारी शनाख्त और पहचान है, हम दुनिया की उर्दू की ज़बान की वजह से जाने जाते हैं। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, इस हवाले से बताइए। बिल्कुल जी, देखें इस वक्त हम नमल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं आज उन्होंने यहाँ पे दौरा किया है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी है और हमने देखा कि यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जा रही है और आपकी स्पीच में इस बात में ज़ोर दिया गया कि दूसरी ज़बान सीखने की दिलचस्पी अच्छी है लेकिन अपनी ज़बान को यकीनन तौर पर फ़ौक़ियत देने की भी ज़रूरत है, क्या कहेंगे। अपनी ज़बान को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और बाकी ज़बानें सीखने की ज़रूरत है। तो नमल ने तो बहुत बड़ा ये उनके रेक्टर खड़े हैं जिन्होंने इस वक्त इतने मुख्तलिफ़ जहतों में ये जो लिसान है ना, ये सबसे बड़ा इल्म कहलाता है और अगर ये सीख लिया तो हम जदीद दुनिया के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे, इस्लामी दुनिया के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आज के इस दौरे के बाद भी और जितने बड़ी ये सहूलत पूरे पाकिस्तान में, शायद पाकिस्तान को पता नहीं है। तो मैं तो इनसे कहूँगा एक कॉन्फ्रेंस रखें जिसमें इससे आगाही के लिए हम लोग तमाम पाकिस्तान तक पहुँचा सकें कि हम ज़बानों के लिए हमारे पास वफाक ने कौन सी सहूलतें, रियासत ने कौन से इंतजाम किए हैं। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी बात है। जी, कराची एयरपोर्ट पर मोहब्बत और एहतराम का हसीन मंजर। गवर्नर सिंध ने सऊदी शहजादे को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। कामरान टेसोरी बोले कि पाक सऊदी ताल्लुकात अखुवत और एतमाद की बुनियाद पर कायम। सऊदी शहजादे ने गवर्नर सिंध की गर्मजोशी मेज़बानी को सराहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। आपको अपडेट कर रही हैं। गवर्नर सिंध ने सऊदी शहजादे को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। कामरान टेसोरी बोले पाक सऊदी ताल्लुकात अखुवत और एतमाद की बुनियाद पर कायम हैं, जबकि सऊदी शहजादे ने गवर्नर सिंध की गर्मजोश मेज़बानी को सराहा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। इस हवाले से बात करेंगे ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइए। बिल्कुल जी, देखें गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसोरी का आली मर्तबत शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद और वक्त को कराची एयरपोर्ट पर अलविदा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने आली मर्तबत शहजादा और वक्त को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। कामरान खान टेसोरी बोले कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात अखुवत, मोहब्बत और बाहमी एतमाद पर इस्तवार है, जबकि अली मर्तबा शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मेज़बानी और गर्मजोशी पर इज़हार तशक्कुर किया। कामरान खान टेसोरी ने इस मौके पर कहा कि दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रहेंगी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह और कौंसल जनरल सऊदी अरब कराची नासिर अल सुबई भी मौजूद थे। जी ठीक है ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर में फल फरोशों की मनमानियां उरूज पर हैं। सरकारी और बाजारी कीमतों में ताहाल वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। कौन सा फल किस कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से। बताएगा रिमशा।
कायद में फलों की सरकारी और बाजार कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है और कमिश्नर कराची की जानिब से मुकर्रर करदा निर्खनामों को जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है। इस वक्त अगर हम बात कर लें केले की, तो केले सरकारी कीमत जो है वो 75 रुपये की दर्जन है, लेकिन यहाँ पर जो है बाजार में 150 में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेब की अगर हम बात कर लें तो सेब की सरकारी कीमत 208 है, जो कि 350 तक में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ नाशपाती की बात करें तो नाशपाती की जो सरकारी कीमत है वो इस वक्त 219 है, जो कि इस वक्त 600 रुपये में फरोख्त की जा रही है। जबकि पपीते की बात करें तो पपीता 183 के बजाय 350। जबकि अंगूर की अगर हम बात कर लें तो अंगूर की सरकारी कीमत 322 रुपये है, जो कि इस वक्त 800 रुपये में बाजार में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात कर लें अनार की, तो अनार की सरकारी कीमत 265 है, जो कि 600 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ आमलोग की बात कर लें तो आमलोग की जो सरकारी कीमत है वो 133 रुपये है, जो कि 400 पे फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार के मुताबिक मंडी से जो माल मिलता है वही महंगा मिलता है। सरकारी निर्खनामों पर जो रकम होती है वो बिल्कुल मुतरादिफ होती है, लिहाजा इसके साथ साथ जो है ट्रांसपोर्ट के भी अखराजात होते हैं, लिहाजा मंडी से यहाँ आने में जो है भारी अखराजात का सामना करना पड़ता है, जिसके बायस जो है वो फल जो है वो महंगे बेचे जा रहे हैं। जी। वज़ीर सिंध के मामले ख़ुसूसी बराए साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोहम्मद अली राशिद ने कहा कि सिंध में रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए एक जदीद ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ़ कराया जा रहा है। पोर्टल के ज़रिए शहरी अपनी अहलियत के मुताबिक नौकरियों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। मज़ीद इस हवाले से तफ़सीलात जानेंगे बेरशीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। जो तेज़ी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान का सालाना अगर देखा जाए जो एक्सपोर्ट है आईटी की वो तकरीबन $3 अरब से तजावज़ कर गई। इसमें कितना इजाफा हो सकता है और क्या क्या सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है, इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जानते हैं मामून खुसूसी वज़ीर आला के मुराद अली शाह साहब के मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर भी हैं, एडवाइज़र भी हैं। उनसे जानते हैं क्या होने जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि IT सेक्टर के लिए क्या प्लानिंग है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोशिश हम कर रहे हैं कि IT मिनिस्ट्री जो है माजी में और स्पेशली सिंध में उस तरह हम परफॉर्म नहीं कर पाए जो जिस तरह हमें करना चाहिए, और बहुत एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये, तो वक्त के साथ भी चलना है और चीज़ों को देखना है। तो खैर उसको देखते हुए अब उन्होंने कहा है कि ये मिनिस्ट्री एक अलग तरीके से चीज़ों को देखे। तो हमने अभी मुझे चार्ज लिए 1 हफ्ता ही हुआ है, मगर हमने सिंध जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, सिंध गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं, हम एक ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं। सब चीज़ों को अपना ई स्टैंपिंग हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई, और जॉब्स वॉब्स जितनी भी सिंध की होंगी हुकूमती, वो आप एक नॉर्मल CV अपने डाल के वो आप CV अपलोड करेंगे तो AI के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया मीट करते हैं। सिमिलरली ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रीलांसर्स हो गए, उन पे टैक्स फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लग रहा है। ये चीज़ मुझे पता चली थी तो उसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि इंसेंटिव्स दें उल्टा एक लोगों को, फ्रीलांसर्स को जो काम कर रहे हैं हमारे, उनके लिए एक आइडल एनवायरनमेंट बना जो हम नहीं बना सके अनफॉर्चुनेटली। तो मजीद उन पे टैक्सेशन लगाना इट्स नॉट समथिंग विच आई वुड बी इन फेवर ऑफ। जैसा कि आपने सुना अहम मालूमात भी दी, और सिंध गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है कि रोजगार के मौके के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें की जा रही है, उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। और ये भी कहा है कि जो वफाक की जानिब से जो फ्रीलांसर को भारी टैक्सेस लगाए हैं, सिंध गवर्नमेंट उसके खिलाफ है, लेकिन यहाँ पे कहा है साथ ही कि उनको मराद देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिल सके। पाकिस्तान की बैंक हिस्ट्री का दरख्शां सितारा डूब गया। 63 साल कामयाबियों का सफ़र ख़त्म। शेख मुख्तार अहमद इंतकाल कर गए। शेख मुख्तार अहमद इब्राहिम फैब्रिक और एलाइड बैंक लिमिटेड के मालिक थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एलाइड बैंक में सोग की फ़ज़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शेख मुख्तार अहमद को खराज अक़ीदत। बोले, शेख मुख्तार के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। बताएगा अशरफ। यहाँ अफसोसनाक इतला आई है कि मारूफ बैंकर शेख मुख्तार अहमद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान के मारूफ बैंकर और सनतकार शेख मुख्तार अहमद जुमे के रोज इंतकाल कर गए। एलाइड बैंक के डायरेक्टर शेख मोहम्मद इख्तियार के बारे में जो एलाइड बैंक लिमिटेड ने शेख मुख्तार के इंतकाल की इतला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया है, जिसमें खत में कहा है कि हम इंतहाई अफसोस के साथ इतला देते हैं कि एलाइड बैंक लिमिटेड के मौजूद स्पॉन्सर डायरेक्टर शेख मुख्तार अहमद वफात पा गए हैं और शेख मुख्तार अहमद ने अपना कारोबारी सफर
جو 1947 کے قیام میں پاکستان کے فوراً بعد ہجرت کے بعد شروع کیا ہے. انہوں نے اپنی کاروباری جو زندگی ہے اور ان میں صلاحیتوں کے ذریعے پاکستان کی صنعتی اور تجارتی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. 63 سال سے زائد کے تجربے کے حامل شیخ مختار احمد نے مختلف صنعتی اور مالیاتی ادارے قائم کیے ہیں. وہ 2005 سے الائڈ بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے رکن تھے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس سے بھی صنعت یافتہ ڈائریکٹر تھے. یہاں وہ ابراہیم فائبر لمیٹڈ، ابراہیم ہولڈنگ لمیٹڈ، ابراہیم ایجنسیز لمیٹڈ اور ایسٹ مینجمنٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے. ایچ بی ایل میں وہ کافی عرصے سے یہاں ساتھ تھے اور اس کے علاوہ وہ ابراہیم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بورڈ کے رکن بھی تھے. یہاں اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شیخ مختار احمد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیر داخلہ نے مرحوم کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے. محسن نقوی نے کہا ہے کہ شیخ مختار احمد نے بینکاری اور کاروباری شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. ان کی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جی، بیورو چیف اشرف خان اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ.